Number one, number system and complements, subtraction using complements, binary codes, and last logic like digital logic families. उसमें जो आपकी नंबर सिस्टम है एज वेल एज सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट है बाइनरी कोड्स है दिस आर द इम्पोर्टेंस ओके लाइक एडिशन बीसीडी एडिशन एंड ये एक्सेस 3 एडिशन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको actually it is in syllabus so at least we have to practice for one time or two time okay and most probably आपकी सैटरडे टेस्ट होगी यूनिट नंबर 1 के लिए ठीक है आज मंडे है सैटरडे आपकी टेस्ट होगी मे बी इन ब्रेक फॉर लाइक हाफ एन आवर अभी डिसाइड नहीं है कितने आवर के लिए बट सैटरडे होगी ठीक है आपको एक दो दिन बता देंगे टाइम उसका जो भी है बट सैटरडे गूगल फॉर्म में आपकी लाइक टेस्ट होगी वो पर्टिकुलर टाइम में उसके रिस्पॉन्स से वो ओपन होंगे एंड पर्टिकुलर टाइम पे वो क्लोज हो जाएंगे ओके सो सैटरडे आपकी टेस्ट होगी फॉर यूनिट नंबर 1 डिजिटल fundamentals की okay now module number 2 it is a combinational design circuit okay so first of all what are the like topics covered in module number sorry it is a module number 2 okay yahan pe mistake it is a module number 2 actually we have already studied the Boolean algebra उसके लॉस से why we are using this Boolean algebra and laws because we have to simplify our function so minimum numbers of logic gates are required okay so this combinational circuit it is nothing but consist of numbers of gate अगर आप कोई भी फंक्शन दिया है कि लाइक एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड ओके सो इन दिस 3 मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स है मीन्स वी रिक्वायर लाइक 3 एंड गेट okay and after that for addition we require one OR gate so if we design this type of circuit so it is a combinational circuit or you can consider it is a logic diagram okay so in this way numbers of combinational circuit are there in this chapter multiplexer demultiplexer decoder adder subtractor parity generator checker okay these are the normally a combinational circuit okay and all are important multiplexer का भी एग्जांपल होगा डिकोडर का भी होगा आपको एडर में हाफ एडर फुल एडर वो पूछ सकते हैं ठीक है एज वेल एज डिजिटल कंपैरेटर सो मे बी इट इज a 2-bit magnitude comparator or 4-bit magnitude comparator parity you already know about that like even parity and odd parity but how we can check by using diagram or how we can generate by using diagram so it is covered in parity checker and generate okay so and like code converter priority encoder decoder driver like led lcd these are the display device so how we can like design by using gates and last it is a qm method of function realization okay so main important concept covered in this chapter it is a kmap second number kmap representation ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी हमने बुलियन फंक्शन आपने किया हुआ है उसके लो अप्लाई करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन अगर आपका जो फंक्शन है उसमें नंबर्स ऑफ टर्म बहुत ज्यादा है कि लाइक 10 है या 11 है या फिर नंबर्स ऑफ वेरिएबल ज्यादा है सो यू कांट प्रेडिक्ट अबाउट द लॉस कि मुझे इसमें कौन सा लो अप्लाई करना है सो यू जस्ट अप्लाई द लाइक ट्रायल एंड एरर मेथड बट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग okay so to overcome this advantage this kmap come into the picture kmap it is designed by Carnot it is the name of scientist Carnot that's why this kmap it is also called as a Carnot map okay and compulsory इसके 1 या 2 एग्जाम्पल जीटीयू की एग्जाम में होते ही है वो कंपलसरी है kmap एंड वो बहुत इजी है अगर स्टार्टिंग के स्टेप अगर आपको आते हैं तो उसमें कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं है ठीक है नाउ kmap की भी एक लिमिटेशन है कि लाइक अप टू 5 वेरिएबल इट्स ओके बट आफ्टर लाइक 5 वेरिएबल वी कांट गिव द जजमेंट इन पेयर एक्चुअली kmap में आपको पेयर बनानी पड़ेगी तो पेयर बनाने के लिए उसमें जजमेंट नहीं आएगा so to overcome this we have to apply the last method of simplification it is a qm method and it is a tabulation method it is a little complicated that's why वो लास्ट में भी रखी है in syllabus also it is a qm method is also called as a tabulation method also ठीक है so these are the only for the simplification of boolean function first तो कैसे simplify कर सकते हैं हम by applying the law next one using kmap and last it is a qm method of function realization okay ये last step है उसका qm method का okay so kmap है उसका एक एग्जाम्पल आएगा एग्जाम में 1 या 2 तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट kmap से ही करेंगे बट बिफोर kmap
कुछ एक्सप्रेशन ऐसे है कि वो हमें देखने पड़ेंगे कि किस टाइप के एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू हम केमेप उसका यूज कर सकते हैं. सो नॉर्मली योर बुलियन एल्जेब्रा representation divided into two category like canonical form and standard form. Okay, topics to be covered. So it is a standard representation of logic function. How we can represent our logic function? आपने लिख दिया कि like x y z plus y dash x plus something. So it is simply a canonical form, not a standard form. Standard form is that in particular term, all terms having all the variables. Like मैंने एक term लिखी x y. So it is not a perfect term for standard representation. उसमें जितने भी वेरिएबल्स आपकी इक्वेशन में प्रेजेंट है वो हर टर्म में होने चाहिए फॉर ईच एंड एवरी टर्म. उसमें सिर्फ एक्स वाई नहीं होना चाहिए. एक्स वाई जेड टेस्ट हो तो भी चलेगा और एक्स वाई जेड है फिर भी चलेगा, लाइक नॉर्मल वैल्यू और कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, बट ऑल द वेरिएबल्स मस्ट बी कवर्ड इन ईच एंड एवरी टर्म्स ऑफ योर लॉजिक फंक्शन. देन एंड देयर इट इज कॉल्ड एज a standard representation of logic function. Second, simplification using CAMAP, and after that all are the combinational circuit: multiplexer, demultiplexer, decoder, adder, subtractor, combinational circuit, and last it is a QM method, but this method is also for simplification, but it overcomes the disadvantage of CAMAP. So first of all, your Boolean function divided into two representation: canonical form as well as standard form. Canonical form it is simply like जैसे मैंने आपको बताया कि like x y z plus y z x और plus x y plus y z कुछ भी आपको जो भी इक्वेशन मिला आपने लिख दिया. So it is a canonical form. Okay. So in Boolean algebra, a Boolean function can be expressed as a canonical disjunctive normal form known as a mean term, and some are expressed as a canonical conjunctive normal form. It is known as a max term. Actually you all are familiar with mean term and max term. Simply उसका name different दिया है, that's why हम confuse होंगे. अदरवाइज आपको सबको पता ही है कि mean term कौन सा है, max term कौन सा है, वो भी आगे आएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा. Okay, in mean term we look for the function where output result in 1. Actually this mean term always give the output result 1, while max term always give the output result is 0. Okay, and this form represent your function in again two category. It is sum of mean term, means you can say a sum of product. उसका मीनिंग क्या है sum of product का, कि product है उसका sum. तो of course xyz plus yz plus x dash y dash z. So these are the multiplication terms. So you can consider it is a product term. Okay, so it is simply a sum of product. Product का sum. That's why it is a SOP form. These two form are very important for designing CAMAP all over the chapter. Okay, sum of product and product of sum. Okay, so sum of mean term, it is nothing but sum of product, because mean term itself a product. Okay, and second form it is a product of max term. Max term itself it is a addition. That's why it is a product of sum. Okay, so we perform 1 minute. Okay, so we perform the product of max term, also known as the product of sum. So Boolean function represented as a sum of mean term or product of max term are said to be in canonical form. Okay, normally Boolean function divided into two form: canonical form and standard form. And canonical form again divided into two category: sum of product and product of sum. Okay, now first of all, what is mean term and max term? It should be clear. उसके बाद ही हम SOP and POS form आप लिख सकते हैं. ठीक है, आप सबको पता ही है. अगर मुझे 3 वेरिएबल दी है तो उसके 2⁻³ मीन्स हाउ मेनी कॉम्बिनेशन यूजिंग 0 and 1? 8. ओके, सो यहाँ पे सिंपली मैंने 8 लिखे है. ये कैसे लिखने हैं ये भी आपको पता आई थिंक. अगर 3 वेरिएबल के लिए मुझे 8 कॉम्बिनेशन लिखने हैं तो लाइक मुझे ऐसा नहीं लिखना है कि 0 1 2 3 एवरी टाइम. आप अगर उसका डेसिमल टू बाइनरी काउंट करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है. वो क्या लिखना है आपको? x में फर्स्ट 4 0, नेक्स्ट 4 1, y में 2 0 2 1 2 0 2 1 sequence followed, and in z 0 1 0 1 0 1 0. So term मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइक टर्म एज वेल एज उसका डेजिग्नेशन, बिकॉज आपको मेन टर्म है वो डेजिग्नेशन में भी दे सकते हैं. एंड दिस डेजिग्नेशन इट इज नथिंग बट लाइक बाइनरी डेसिमल विच इज रिप्रेजेंटेड सबस्क्रिप्ट हियर. ओके, नाउ फर्स्ट आप देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है? 0 0 0 0. सो वी कैन राइट प्रोडक्ट टर्म, इट इज एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश. ओके,
नाउ एक्स डैश वाई जेड वाई डैश इंटू जेड डैश की वैल्यू क्या होगी? चलो एक्स वाई जेड उसकी वैल्यू 0 दी है तो उसका डैश होगा तो 0 का डैश इंटू 0 का डैश इंटू 0 का डैश, इट इज ए 1. सो मीन टर्म ऑलवेज गिव यू 1 एंड मैक्स टर्म, ओके, मीन टर्म का डेजिग्नेशन क्या है? m0. वाई इट इज 0? बिकॉज इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी 0 0 0 की 0. ओके, कैसे डेसिमल वैल्यू? हाउ वी कैन कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल? कैसे फाइंड कर सकते हैं डेसिमल वैल्यू? 0 each and every bit in your combination multiply with its weights, like 0 into 2 raised to 0 plus 0 into 2 raised to 1 plus 0 into 2 raised to 2. But here weights are not important because all the multiplication वाले bits क्या है? 0, and 0 का डेस क्या होगा? 1. ओके, एंड उसका डेजिग्नेशन स्मॉल m है. मोस्ट इंपोर्टेंट, मीन टर्म है उसको स्मॉल m में रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्स टर्म को कैपिटल M में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ मैक्स टर्म कैसे फाइंड आउट करना? सिंपली यू हैव टू टेक अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ मीन टर्म, लाइक x डैश, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x, एंड डॉट है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? प्लस. सेम y डैश, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? y, डॉट की जगह पे क्या आ जाएगा? प्लस. सेम फॉर क्या होगा? z. एज वेल एज यू कैन अप्लाई द डी मॉर्गन थ्योरम ऑल्सो. ये पूरे टर्म का अगर मैं डैश करती हूँ तो एज पर डी मॉर्गन थ्योरम आपको क्या मिलेगा? x प्लस वाई प्लस z, एंड उसका डेजिग्नेशन कैपिटल M एंड डेसिमल वैल्यू 0. ओके, नाउ मीन टर्म, तो अगर मैं इसका एडिशन करती हूँ एंड पुट द वैल्यू ऑफ x y z, सो 0 प्लस 0 प्लस 0 विच गिव्स यू 0. So mean term, max term always give you 0 and mean term always give you 1. Same for all other combination, you have to complete this table. जैसे मैंने सेकंड टर्म के लिए लिया तो सेकंड टर्म में सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू भी 0 0 है, सो वी कैन राइट एक्स डैश वाई डैश एंड जेड. नाउ ये 1 कहाँ से आया? बिकॉज 1 इंटू 2 रेस टू 0 होगा, 0 इंटू 2 रेस टू 0, बट ये सारी दोनों बिट्स तो 0 ही है, तो ओनली 1 इंटू 2 रेस टू 0, एंड 2 रेस टू 0 क्या होता है? 1, तो 1 इंटू 1, तो डेसिमल वैल्यू क्या आएगी? 1. यहाँ पे 2 कैसे आई? 0 इंटू 2 रेस टू 0, तो टर्म तो आएगी ही नहीं. 1 इंटू 2 रेस टू 1, सो इट इज़ ए 2, एंड अगेन ये टर्म तो नहीं आएगी, सो आपका आंसर क्या आएगा? 2. सो डेसिमल वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बाइनरी डेसिमल तो आना ही चाहिए, वो केमएप में भी यूज होगा. ओके, सो नाउ मैक्स टर्म एंड मीन टर्म फाइंड हो चुके हैं. सो नाउ हाउ वी कैन डिजाइन द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम. सम ऑफ प्रोडक्ट आपको क्या बोला है? प्रोडक्ट का सम. सो दिस टू आर द प्रोडक्ट, ए बी डैश बी डैश सी, उसका क्या करना है? सम. सो इट इज फॉर्म, दिस फॉर्म इट इज कॉल्ड एज ए एसओपी फॉर्म. ठीक है, आइदर वो फॉर्म आपको दे देंगे या फिर आपको केमएप से भी डिराइव करना होता है. ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम सिंपल है, सम का प्रोडक्ट करना है. सो इट इज ए डैश प्लस बी डैश, एक टर्म ली है, सेकंड टर्म मैंने ली है बी प्लस सी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा विच गिव यू द पीओएस फॉर्म. प्रोडक्ट का सॉरी सम का क्या होगा? प्रोडक्ट. यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट का सम. So this is a SOP form, this is a POS form. GTU may be asked like that कि simplify particular function using KMAP and derive the SOP form and POS form. तो first of all तो हमें पता होना चाहिए कि what is SOP form, which consists of mean term, and what is POS form, which consists of max term. Okay, okay, and this category consider into canonical form. Canonical form देखो, इसको canonical form बोलते हैं. अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है? ईच एंड एवरी टर्म ऑफ योर बुलियन फंक्शन हैविंग ऑल द वेरिएबल्स आइदर इन नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. लाइक यहाँ पे मुझे सिंपली क्या दिया? ए बी डैश, बट सी मिसिंग है. देखो इसमें सी चाहिए मुझे, देन एंड देन दिस पर्टिकुलर टर्म आई कैन कंसिडर एज ए स्टैंडर्ड. सेम फॉर बी डैश सी, तो मुझे ए चाहिए, ए इज मिसिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कैनोनिकल दिया है ना तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. आफ्टर कन्वर्जन हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बोला है तो की ही बात है. सेम यहाँ पे देखो ए डैश प्लस बी डैश, सो कौन सा मिसिंग है टर्म में? सी. सेम यहाँ पे बी प्लस सी, सो कौन सा मिसिंग है? ए. सो वी हैव टू डू समथिंग टू कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? So Boolean variable can be expressed in either true form or complement form. In a standard form, a Boolean function will contain all the variables in either true form or complemented form, while in a canonical numbers of variable depend on the output of SOP or POS. Okay, canonical जो आपका फॉर्म है उसमें कौन सी कैटेगरी आएगी? SOP और POS फॉर्म.
ठीक है। बट अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, सो क्या बोला है आपको, फंक्शन विल कंटेन ऑल द वेरिएबल आइदर इन टू फॉर्म, मीन्स नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ओके, बट कैनोनिकल फॉर्म में ऐसा नहीं, यू कैन डिजाइन लाइक सिंपली एसओपी एंड पीओएस फॉर्म। ओके, सो हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर फंक्शन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आपको दिया है, देखो, एक्सप्रेस द बुलियन फंक्शन इन सम ऑफ मीन टर्म। अगर आपको ऐसा बोला है कि इसको सम ऑफ मीन टर्म में कन्वर्ट करो, देन यू टू ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोला है। ठीक है, अदरवाइज आपको अगर सम ऑफ मीन टर्म में बोलेंगे तो ये सम ऑफ मीन टर्म तो ऑलरेडी है ही, एक्सप्रेस द बुलियन फंक्शन इन सम ऑफ मीन टर्म, तो ये दोनों मीन टर्म ही है, बट नॉट लाइक ए इट इज सिंपली ए, तो वो मीन टर्म नहीं है। ओके, तो सम ऑफ मीन टर्म आपको बोला है, सो उसको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। The function has 3 variables a, b, c. Okay, this snapshot I will actually it's taken from the Morris Meno. Okay, Morris Meno से मैंने लिया हुआ है क्योंकि उसमें अच्छा दिया उसका जो एक्सप्लेनेशन है, that's why. ओके, अब आपको क्या करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों टर्म को सेपरेट कर दो, एक टर्म ए है, दूसरी कौन सी है, बी डैश। फर्स्ट रियलाइज थे कि ए टर्म है तो उसमें कौन से दो वेरिएबल मिसिंग है, एक बी है एंड एक सी है। तो फर्स्ट मैंने मल्टीप्लाई किया विथ माई टर्म ए b प्लस बी डैश। अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ b प्लस बी डैश तो इसका आंसर क्या होता है 1, तो अल्टीमेटली वो 1 ही रहेगा, बट वो हमारे सिंप्लीफिकेशन में यूज होगा। ओके, सो a इंटू 1, सो वी जस्ट मल्टीप्लाई विथ b प्लस बी डैश। ओके, तो आपको ये दो टर्म मिल गई। फिर भी ये दोनों टर्म को चेक करो, कौन सा मिसिंग है दोनों टर्म में, c मिसिंग है, सो मल्टीप्लाई दिस टू टर्म विथ c प्लस c डैश, c प्लस c डैश। सो नाउ फॉर पर्टिकुलर वेरिएबल और पर्टिकुलर टर्म a we have the 4 different terms. Okay, now for part 2 it is a b dash c, so b dash c में कौन सा मिसिंग है, a, so it is a plus a dash, तो कौन सी टर्म मिली मुझे, 2। Okay, now add this two term a plus b dash c, so total 4 plus 2 means 6 टर्म यहाँ पे आएगी। ओके, तो ये 6 टर्म थी, उसमें से यहाँ पे सिर्फ 5 आई, कैसे 5 मिली मुझे सिर्फ, चलो कौन बताएगा। यहाँ पे एक्चुअल में 6 टर्म आई है आफ्टर एडिशन ऑफ दिस 2, ओके, फॉर होल फंक्शन। सो यहाँ पे तो मैंने 5 यहाँ पर ए बी डैश सी 2 बार है तो वो एक ही बार कंसिडर होगा ना। हमने आगे मतलब जो डी मॉर्गन रूल्स वहाँ पर हमने देखा था ए प्लस ए तो ए ही होता है। यस, इसी तरह यहाँ पर भी इट इज इन बुलियन लॉस और लॉस कि अगर ए प्लस है सो वी हैव टू कंसीडर ओनली वन टाइम इट इज ए। अगर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना तो ए प्लस ए 2a होता है, बट वो लॉजिकल में नहीं होगा। ओके, सो ए प्लस ए क्या होता है, ए मीन्स कोई भी टर्म्स अगर 2 टाइम्स रिपीटेड है तो वी हैव टू कंसीडर ओनली वन टाइम। तो ऐसी कौन सी टर्म है जो रिपीट हो रही है, इट इज ए बी डैश सी, यहाँ भी है एज वेल एज यहाँ भी है, सो वी जस्ट कंसीडर वन टाइम। ओके, ये मैंने कहाँ से लिखा है, चलो एफ इज इक्वल टू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें वापस टेबल देखने नहीं जाना है, आपको ये इंडिविजुअली इसका डेसिमल पता होना चाहिए। अगर टेबल देखने जाएंगे तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि सो कैसे फाइंड करना, आपको a की वैल्यू क्या दी है, a डैश, सो वी कैन कंसीडर इट इज a 0, इट इज a 0 एंड इट इज a 1, तो 0 0 1 उसका डेसिमल क्या होता है 1, सो इट इज m1, 1 0 0 सो इट इज a 4, सो इट इज m4, 1 0 1 सो इट इज a 5, सो इट इज m5, 1 1 0 so 4 plus 2 means 6, so m6, and 1 1 1 so 4 plus 2 plus 1 means 7. Okay, so we just write in this way, binary to decimal. आप ये वेरिएबल से भी फाइंड कर सकते हैं, नो नीड टू डू अगेन कंप्लीट टेबल, आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे फाइंड करना है, डैश से उसको 0 कंसीडर करना है, फॉर ओनली मीन टर्म्स की बात है। ओके, सम ऑफ मीन टर्म के लिए बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, और उसको आप इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज ए सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या है सम, दैट्स वाई यहाँ पे समेशन का सिंबल होगा। ओके, वी कैन रिप्रेजेंट अवर फंक्शन इन मीन टर्म वैल्यूज ऑल्सो और मीन टर्म नंबर ऑल्सो, लाइक एफ ए बी सी वो हमारा फंक्शन था बिकॉज 3 वेरिएबल प्रेजेंट थे, इज इक्वल टू समेशन का सिंबल करना बिकॉज इट इज ए सम ऑफ मीन टर्म, एंड कितनी मीन टर्म्स कवर हुई है 1 4 5 6 and 7। आपको अगर ये उल्टा दिया ना फिर भी आपको पता चलना चाहिए कि ये जो मुझे उल्टा दिया उसमें से कौन सी टर्म का मुझे एडिशन करना है। आपको ऐसा भी दे सकता है, ये दे दिया है
और बोला है कि सिंप्लीफाई, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सिंप्लीफाई होगा, और आइदर यू कैन अप्लाई द KMF. Okay, anyone doubt in this? Anyone having doubt in this to convert into standard? No, ma'am. Okay, okay. Now next one, ये तो आपको कौन सी बात हुई अगर सम ऑफ मीन टर्म आपको दिया, लेकिन अगर प्रोडक्ट ऑफ मिक्स टर्म और प्रोडक्ट ऑफ सम दिया हुआ है तो क्या करेंगे? दोनों के एग्जांपल है, सो उसके थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं. देखो नाउ, express the boolean function f is equal to xy plus x dash z in product of mixed term form. First convert the function or terms using distributive law. क्यों? एक तो आपको क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ मिक्स्ड टर्म, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फंक्शन तो मिक्स्ड टर्म में कन्वर्ट होना चाहिए ना, ये दोनों तो मीन टर्म है. ये आपको कौन सा फॉर्म दिया है? एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट दिया है. मिक्स्ड टर्म का तो कहीं ठिकाना ही नहीं है इसमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे मिक्स्ड टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे कौन सा मिसिंग है. ओके, तो कौन सा लॉ अप्लाई हो सकता है इसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? लाइक मुझे यहाँ पे दिया है कि a प्लस बी सी, सो आई जस्ट राइट a प्लस बी इंटू ए प्लस सी. ओके, तो सेम आपको एक्स वाई प्लस वन टाइम एक्स डेस को कंसिडर करना है, सेकंड टाइम एक्स वाई प्लस जेड को कंसिडर करना है. इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ओके, नाउ अगेन डिस्ट्रीब्यूट दिस इंडिविजुअल टर्म, सो एक्स प्लस एक्स डेस, वाई प्लस एक्स डेस, एक्स प्लस जेड, y plus z, x plus x dash is equal to 1. So we are having only 3 terms. Now check which variable is missing. Okay, so first आपको दिया है x plus y, तो x plus y में कौन सा मिसिंग है? थ्री टर्म्स आपको दी है. फॉर फर्स्ट टर्म, फॉर ईच एंड एवरी टर्म हमें देखना है कि मिसिंग है, तो वी हैव टू डू समथिंग टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे थ्री टर्म लिख देनी है. तो x प्लस वाई दिया है आपको, x डेस प्लस वाई, तो कौन सी टर्म, कौन सा वेरिएबल इसमें मिसिंग है? z मिसिंग है. सो अब क्या करेंगे हम? आपको इस तरह से कुछ ऐड करना है कि x प्लस वाई जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए. सो वी कैन जस्ट ऐड z इंटू जेड डेस, z into z dash, it is an end law. क्या होता है? 0 into 1, so it is 0, so it is not affected. x plus y ही रहेगा, sorry x dash plus y ही रहेगा. Okay, now again apply the distributive law. x dash plus y plus z, x dash plus y plus z dash. Same for x plus z, second term, उसमें क्या missing है? y, so we have to just add plus y into y dash, apply the distributive law. Now for third term, y plus z, which one missing? x, so we just write or add x into x dash, apply the distributive. Okay, now multiply all this term. total कितनी term है? 6. why multiply? because product of mixed term है. यहाँ पे आपने जो भी terms ली थी सबका क्या था? product. आफ्टर फाइंडिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म हमें अगेन क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन. तो सबका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा. तो टोटल मेरे पास 6 थी, बट यहाँ पे तो मुझे सिर्फ 4 ही मिली है. वाई? सिक्स टर्म थी. रिपीटेड टर्म एक ही बार लिखी जाएगी. यस. सो कौन सी रिपीटेड है इसमें? x plus y plus z. x dash plus y plus z. Yes. These two terms are repeated, x plus y plus z, and second term it is x dash plus y plus z. ओके, तो इसको वन टाइम ही कंसिडर करेंगे. तो जैसे ये दोनों को अगर मैंने निकाल दिया तो कितनी बची? 4. 1 2 3 एंड 4. 4 टर्म्स है. इसको अगेन किस में कन्वर्ट करना है आपको? डेसिमल फॉर्म में और डेजिग्नेशन फॉर्म में. तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मेन टर्म में तो हम डायरेक्टली लिख रहे थे. यहाँ पे क्या आया? एक्स वाई जेड, इसको 0 ही करना है. तो इसमें हमें उल्टा कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर डैश नहीं है ना तो 0 कंसिडर करना. उसमें क्या कंसिडर कर रहे थे? जिस टर्म का डैश है, जिस वेरिएबल का डैश है उसको 0 कंसिडर करते थे. जिसमें डैश नहीं है, जैसे यहाँ पे ये डैश है, इस टर्म को मैं क्या कंसिडर कर रही थी? 0 0 1. तो 0 0 1 का डेसिमल क्या होता है? 1. यहाँ पे उल्टा करना है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे. बिकॉज अल्टीमेटली मैक्स टर्म इट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ मीन टर्म. ओके, सो यहाँ पे क्या कंसिडर करूंगी मैं? 0 0 0. तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 0.
नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अब क्या कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे कि 0 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। या फिर इधर आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं जैसे ये टर्म है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगी एक्चुअल में एक्स डैश मीन्स, तो ओके एक्स डैश मीन्स क्या लेना मुझे 1, सो 1 प्लस 0 प्लस 1। या फिर आप जैसे हमने लिया था वैसे करेंगे फिर भी आंसर मिलेगा, बिकॉज ये अल्टीमेटली क्या है, एडिशन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सॉरी नॉट लाइक ये कॉम्प्लीमेंट ही है तो आपको x मीन्स 0 ही लेना पड़ेगा एंड x डैश मीन्स 1 वो क्लियर कर देना, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। x मीन्स 0 कंसीडर करना, अगर x डैश है तो 1 कंसीडर करना है। टेबल से तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट विदाउट टेबल कैसे लिखना है इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। x मीन्स 0 तो 0 0 0 मीन्स डेसिमल 0 होगा, x मीन्स 0, y डैश मीन्स 1, so 0 1 0, so डेसिमल क्या होगा 2। Now 1 0 0 means 4. Now 1 0 1, so it is a 5. Now write this particular in designation form and next mean term के लिए यहाँ पे summation का symbol था, ये product terms है तो that's why यहाँ पे पाई जैसा symbol आपको बनाना है और जो भी mixed term है उसको इस in bracket में लिख देना है 0 2 4 and 5. Okay, so it is called as a standard form. Okay, canonical form divided into two category, SOP form and POS form. Okay, and the second form it is a standard form. How we can convert into standard form? And what is standard form? Each and every term of your Boolean function having all the variable either in complement form or normal form. Now K-map, most important, it is a K-map. Okay, simplification of Boolean function leads to a simple and faster digital circuits. Okay, it gives the more simplification of your Boolean function. Simplify the Boolean function using identity. Identity का meaning है loss. It is a time consuming and sometimes it produce the error, क्योंकि मैंने कुछ different rule लगाया है, किसी और ने कुछ और law लगाया है, so not necessary के all time सबका same ही मिले simplification version. So it is like time consuming as well as error prone. So this special section present a easy systematic method for reducing the Boolean expression. It is a K-map and it is also called as a Karnaugh map, or it is also called as a vector diagram. It is also a Venn diagram. Okay, so K-map is a matrix consist of rows and columns that represent the output value of your Boolean function. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी बुलियन फंक्शन दिया होगा कि एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स डैश प्लस एक्स डैश वाई जेड, सो फॉर ईच एंड एवरी टर्म्स यू हैव टू राइट अ वन इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर. द आउटपुट वैल्यू प्लेस्ड इन ईच सेल आर डिराइव्ड फ्रॉम द मीन टर्म ऑफ बुलियन फंक्शन. स्क्वायर बनाना है आपको, लाइक अगर 2 वेरिएबल स्क्वायर दिया है, सॉरी 2 वेरिएबल क्या मैप है, then 2 raised to 2 means 4, so this map consists of 4 स्क्वायर एंड उस 4 स्क्वायर में हमें क्या प्लेस करनी है, मीन टर्म्स. जो भी मीन टर्म्स आपको बुलियन फंक्शन में दी है वो आपको उस 4 स्क्वायर में प्लेस करनी है. ओके, मीन टर्म इज ए प्रोडक्ट टर्म दैट कंटेन ऑल ऑफ द फंक्शन वेरिएबल एक्सेप्टली वंस, आइदर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. नाउ फर्स्ट वन इज ए 2 variable K-map. 2 variable A and B have a 4 possible combination. Okay, 2 raised to 2 means कितना होगा 4. तो A and B वो दोनों कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 0 1 के भी, 0 0 0 1 1 0 and 1 1, as well as K-map consists of 4 numbers of square, or you can consider it as a 2 cross 2 matrix also, means 2 rows and 2 column. Okay, now मीन टर्म्स कौन सी है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होगा, ये सारी डेसिमल वैल्यू लिखी है देखो स्क्वायर में, आपको डायरेक्टली डेसिमल वैल्यू भी दे देंगे. तो फर्स्ट तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन से स्क्वायर की डेसिमल वैल्यू कौन सी है, देन आई पुट अ 1 और एनी अदर वैल्यूज लाइक 0 0, तो मीन टर्म क्या हुई, ए डैश बी डैश. 0 1, सो इट इज ए डैश बी, ए बी 1 0, सो इट इज ए बी डैश. नाउ 1 1, सो इट इज ए AB. Okay, now 0 0 0 and 0,
उसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी 0। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दिया है मुझे यहाँ पे रो में अगर मैं देखूँ तो, सो 0 एंड 1, ए 0 बी क्या है 1, सो इट इज 0 1। 0 1 का मीनिंग क्या है 2⁻0 वाली टर्म 1 है, सो 1 × 2⁻0 सो 1, तो डेसिमल वैल्यू क्या आएगी 1। उसके बाद 1 0 1, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 0। मैंने ए को एज ए क्या ले लिया है यहाँ पे कॉलम वाइज, और बी को एज ए रो वाइज लिया, ठीक है। आप उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यहाँ भी बी ले सकते हैं, यहाँ भी ए ले सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जैसे आप इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे, ए को मैंने यहाँ पे ले लिया, बी को मैंने यहाँ पे ले लिया, तो डेसिमल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सो कुछ ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिसमें 0 1 आपको यहाँ पे दिया, एंड कुछ आपको एग्जाम्पल ऐसे भी होंगे जहाँ पे 1 यहाँ पे होगा। सो इट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी डेसिमल वैल्यू, ठीक है। सो इट इज 0 1, सो 1 0 1 0, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 0, सो इट इज 1 0 यहाँ पे। सो 1 0, सो 1 0 क्या होता है 0 × 2⁻0 1 × 2⁻1, सो 2 क्या होगा यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 2 होगी। 3 में दोनों की वैल्यू 1 1 है, सो 2 + 1 मीन्स क्या होगा 3। ये कब पॉसिबल है जब यहाँ पे कॉलम में ए दिया है एंड रो में बी दिया, लेकिन अगर कॉलम में बी दिया होता एंड ए को यहाँ पे रो में दिया होता तो ये 0 1 यहाँ पे आता, 2 यहाँ पे आता एंड 3 यहाँ पे आता। सो इट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी, आप कहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो नेट पे या डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ऑर्डरिंग दिए हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आप अपने हिसाब से आपको जो भी वेरिएबल लेना है वो लेके डेसिमल वैल्यू फाइंड करके वैल्यू पुट कर देना। 2 वेरिएबल क्या मैप, ओके, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्डरिंग ऑफ वेरिएबल इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए मैंने ये कवर किया, ऑर्डरिंग की इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट बुक में इसका ऑर्डर डिफरेंट दिया है, बट अल्टीमेटली आंसर सेम ही आना चाहिए। यहाँ पे देखो x मैंने यहाँ पे लिया, x2 मैंने यहाँ पे लिया, नेक्स्ट में क्या दिया है x2 यहाँ पे x1 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 यहाँ पे आ रहा है, 1 यहाँ पे डेसिमल वैल्यू आ रही, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे रो वाइज आ रहा है, बट यहाँ पे कॉलम वाइज आ रहा है 0 1 2 3, ओके। तो इसमें आपको रट्टा मारने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे 0 1 आ सकता है, यहाँ पे 2 3 आ सकता है, या फिर एट द मोमेंट अगर आपको नहीं याद आता है तो आप डेसिमल वैल्यू और बाइनरी में से फाइंड करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, तो 0 0 उसका डेसिमल क्या होता है 0। अब x की वैल्यू 1, x2 की क्या है 0, तो 1 0, तो उसका डेसिमल क्या होता है 2। इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट ऑर्डरिंग ऑफ वेरिएबल इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शन। x1 इज द रो एंड x2 कॉलम है, देखो यहाँ पे x2 कॉलम है, x1 क्या है रो है, यहाँ पे उल्टा है, x1 कॉलम है, x2 रो है, ओके। तो ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, अदरवाइज आप सब जगह पे ऑर्डर डिफरेंट देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इस बुक में डिफरेंट दिया है, इस बुक में डिफरेंट दिया है। यू कैन फॉलो एनी वन, तो आपके लिए वो इजी रहेगा, ओके। नाउ सेल 0 रिप्रेजेंट, यहाँ पे देखो x1 डैश x2 डैश, सेल 1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है डैश, x2 की वैल्यू क्या है 1, ओके। x1 की वैल्यू क्या है 0, x2 की वैल्यू क्या है 1, सो वी कैन राइट x1 डैश x2। मैंने ये ऑर्डर लिया है, दैट्स व्हाई। आप कोई भी लिख सकते हैं, दिस वन और दिस वन। इफ मीन टर्म इज प्रेजेंट इन द फंक्शन देन 1 प्लेस्ड इन अ कॉरस्पॉन्डिंग सेल। जैसे यहाँ पे क्या है x1 डैश x2 डैश, जैसे मेरा फंक्शन है कि x1 डैश x2 डैश प्लस x1 डैश x2, तो कितने मीन टर्म प्रेजेंट है, 2, कौन कौन सी, दिस वन एंड दिस वन, तो आई जस्ट पुट in this 2 square, okay। now next 3 variable के मैप, तो 3 वेरिएबल के मैप में ऑफ कोर्स कितने वेरिएबल होंगे 3, if 3 वेरिएबल तो 2⁻3 मीन्स कितना होगा 8, so there are 8 possible combination। I just write the mean term, again ordering it is important। यहाँ पे मैंने ए लिया है कॉलम में, बी सी किस में लिया, सॉरी हाँ एक मिनट, इसका ऑर्डर थोड़ा फॉर्मेटिंग में मिस्टेक है, ए बी ऊपर की साइड है, ओके। सो ए बी कहाँ पे है, ओके, ए बी यहाँ पे दिया, ए बी कंसिडर द कॉलम बिकॉज 8 है, सो 4 हियर टोटल 8,
Okay, 8 numbers of square. Why 8 numbers of square? 2 raised to 3 means 8. Okay, so I just put AB here for column and C for row. अब आप उल्टा भी कर सकते हैं, सिर्फ एक यहाँ पे आप क्या ले लो, A यहाँ पे ले लीजिए कॉलम में एंड BC यहाँ पे ले लो. तो ये जो 0 1 2 3 था ना कॉलम में जा रहा उसकी जगह पे रो में जाएगा 0 1 2 3 ऐसे. ठीक है, अब तो आपको हर बार डेसिमल वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है. आपको क्या करना है 0 1 2 3 लास्ट में चले जाना है 4 5 6 7. ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7. लेकिन अगर A मैंने यहाँ पे लिया है, BC यहाँ पे लिया है, तो मेरी सीक्वेंस कैसी आएगी रो में 0 1 2 3 4 5 लास्ट में जाना है 6 एंड 7. और इसमें मुझे दिया है ना वो कॉलम वाइज दिया हुआ है. ठीक है, तो रो वाइज कॉलम वाइज आप कहीं भी लिख सकते हैं, बट ऑर्डरिंग है वो इम्पोर्टेंट है. आपको ऑर्डर में या किसी में कुछ भी पता ना चले तो आप कुछ भी रेंडमली लिख दीजिए, बट डेसिमल वैल्यू यहाँ पे करेक्ट आनी चाहिए. आप बाइनरी में से डेसिमल वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, सो इट इज ए 3 वेरिएबल के मैप. नाउ इट इज ए 4 वेरिएबल. 4 वेरिएबल मीन्स A B C D. सो 2 raised to 4 मीन्स कितने होंगे 16. ओके, सो मीन टर्म यहाँ पे आपको दी है टोटल कितनी 16. ओके, कितने स्क्वायर आएंगे 16. हाउ वी कैन राइट दिस स्क्वायर इन कॉलम वाइज. देखो मैंने ए बी यहाँ पे लिया, सी डी यहाँ पे लिया, लेकिन अगर मैं ऐसा लूंगी यहाँ पे ए बी यहाँ पे और सी डी यहाँ पे तो वो रो वाइज जाएगा. अब कॉलम वाइज कैसे जाना है फर्स्ट याद रख लीजिए एवरी टाइम, अदरवाइज आपको डेसिमल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. लेकिन अगर आप कंफ्यूज होंगे रो में एंड कॉलम में तो आप डेसिमल वैल्यू फाइंड करके भी लिख सकते हैं इसको. ठीक है, तो 0 1 2 3 पहले 0 1 लिखना है, 2 के लिए लास्ट रो में चले जाना, 3 के लिए वापस आगे आना है. ओके, तो 0 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 8 9 10 10 11 12 13 14 एंड 15. ओके, कैसे लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. लास्ट कॉलम में जाना है 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. ये कॉलम में है. अगर रो वाइज होता, रो वाइज कब होगा जब मैं ए बी यहाँ पे लूंगी और सी डी यहाँ पे लूंगी, तो वो रो वाइज जाएगा. ठीक है, अब रो वाइज में हम कैसे कर सकते हैं, रो में उल्टा होगा. जैसे मैंने यहाँ पे रो ली है, ठीक है, तो ये कैसे होगा मैं इसमें चेंज कर देती हूँ. इसमें चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा. जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिया वो तो सही है. चलो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे सॉरी 2 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा. लास्ट कॉलम यहाँ पे 2 आएगा. ये मैं रो वाइज लिख रही हूँ. ओके, 0 1 2 3, फिर क्या आएगा 4 5 6 एंड 7. फिर अगेन लास्ट रो में चले जाना है, जैसे उसमें हम लास्ट कॉलम में गए थे 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. वो रो वाइज होगा. ठीक है, सबको पता चला है. मैं पूरा लिख दूं रो वाइज के लिए, डाउट नहीं किसी को, अदरवाइज मैं रो वाइज में पूरा टेबल लिख देती हूँ. हेलो, नहीं मैम क्लियर. अच्छा ओके, ठीक है. सो मोरिस मेनो में है ना रो वाइज दिया हुआ है, शायद आनंद कुमार है ना उसमें कॉलम वाइज दिया है, बट कंफ्यूज मत होना. आप ऑर्डर अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन ऑर्डर चेंज होगा तो रो एंड कॉलम में डिफरेंस आएगा. ठीक है, अल्टीमेटली. बट एट द मोमेंट अगर आप कंफ्यूज भी हो गए तो उसकी बाइनरी वैल्यू देख के आप डेसिमल वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं. अब ये डेसिमल वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई बार आपको डायरेक्टली ऐसा दे देंगे मीन टर्म्स कि 0 12 13 14 एंड 15 रिड्यूस दिस फंक्शन यूजिंग केमैप. तो फर्स्ट तो हमें ये 15 कहाँ पे आ रहा है, 14 कहाँ पे आ रहा है वो पता होना चाहिए. देन वी कैन राइट 1 हियर. ओके ओके, नाउ फंक्शन प्लॉटिंग इन केमैप. कैसे फंक्शन प्लॉट करते हैं, देखो यहाँ पे आपको फंक्शन दिया है ए बी प्लस एड एस बी. तो बहुत इजी है. जो भी फंक्शन दिया है ना उसमें 2 मीन टर्म प्रेजेंट है. कौन सी, ए बी प्लस एड एस बी. तो आपको फर्स्ट ये चेक करना है कि मैंने 4 का केमैप बनाया, वाई 4 का, बिकॉज 2 वेरिएबल है.
इस इक्वेशन में। तो 2 मीन्स कितने स्क्वायर बनेंगे 4। मैंने यहाँ पे कॉलम में ए लिया है, बी यहाँ पे लिया है, तो ऑफकोर्स ये कॉलम वाइज जाएगा 0 1 2 3। ठीक है, तो अब ए बी कहाँ पे आ रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी कब होता है, जब ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे। ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, तो ए बी मीन टर्म कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे 1 लिखना है। जो भी मीन टर्म आपके फंक्शन में प्रेजेंट है वहाँ पे आपको 1 प्लेस करना है इन केमैप। ठीक है, उसके बाद है एड एस बी। तो एड एस बी मतलब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 एंड बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। तो वो टर्म कहाँ पे है, ए की वैल्यू 0 मतलब ये कॉलम, बी की वैल्यू 1 मतलब ये पर्टिकुलर स्क्वायर, तो वहाँ पे मुझे 1 प्लेस करना है। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये तो मैंने रख दिया, अब कुछ हमें सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना। टू यू हैव टू मेक अ पेयर इन पावर ऑफ 2। आपको लाइक पेयर बनानी है डिफरेंट 1 की, बट कंडीशन क्या है, इन पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 का मीनिंग क्या है 2⁻0। तो एक स्क्वायर होगा देन चलेगा, एक स्क्वायर है उसमें 1 है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रुपिंग के लिए क्या करना है 2⁻1, तो 2 मतलब 2 की पेयर बना सकते हैं। 2 तो क्या होगा 4, तो 4 का ग्रुप बना सकते हैं। 2⁻3 तो 8 का बना सकते हैं। 2⁻4 तो 16 का बना सकते हैं। मीन्स यू टू मेक अ पेयर इन पावर ऑफ 2, बट मेक श्योर कि ये 4 है ना, तो 4 के ग्रुप ही मैक्सिमम बन सकते हैं, 8 का इसमें नहीं बन सकता है। ओके, मैक्सिमम कितना ग्रुप बनेगा 4 का या फिर 2 का या फिर 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों पास पास में है, तो हम एक्चुअली यू हैव टू लाइक मेक अ पेयर और कंबाइन पर्टिकुलर स्क्वायर विथ एडजेसेंट नेबर। आप ये दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको नेक्स्ट में दिया है कि हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इसमें। देखो, व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वंस, दैट इज पावर ऑफ 2। फर्स्ट तो आपको ये चेक करना है कि आपको जो दिया है उसमें लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है, 1 का लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है वो चेक करना है। अगर आपका लार्जेस्ट ग्रुप 4 का बन रहा था फिर भी आपने 2 का बनाया है, देन इट इज अ मिस्टेक। जितने मैक्सिमम स्क्वायर बनेंगे, नॉट लाइक मैक्सिमम स्क्वायर बट मैक्सिमम नंबर कवर इन अ पर्टिकुलर पेयर। 4 का भी ग्रुप बन सकता है, लेकिन अगर 8 का ग्रुप बन रहा था फिर भी मैंने 2 का ग्रुप बनाया है 1 का, ठीक है, तो मिस्टेक है वो। 4 का बन रहा था फिर मैंने 2 का बनाया तो मिस्टेक है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हायर नंबर्स ऑफ स्क्वायर के लिए ट्राई करनी है और हायर नंबर्स ऑफ ग्रुप के लिए ट्राई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे यहाँ पे तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। फर्स्ट आप जो ये देखेंगे कौन सा है ये, ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पेयर बन सकती है। तो जैसे मैंने 2 की पेयर बनाई, तो इसको रिड्यूस कैसे करना, आपको ऐसा देखना है कि इसमें वैल्यू क्या थी मेरी 0 and 1, इसमें कौन सी वैल्यू है 1 and 1। सो फ्रॉम गोइंग फ्रॉम दिस 1 टू दिस 1 कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, चलो बताओ। अगर मैं इससे यहाँ पे जा रही, मतलब ये दोनों को मैंने कंबाइन किया, ठीक है, तो ए की वैल्यू फर्स्ट 1 में 0 थी, सेकंड 1 में 1 हो चुकी है। बी की वैल्यू देखो स्टेबल है क्योंकि वो रो में दिया हुआ है, दैट्स वाई, और ये दोनों ए है वो कॉलम में दिया हुआ है, दैट्स वाई किसकी वैल्यू चेंज हो रही है ए की। तो जो भी चेंज है ना उसको निग्लेक्ट करना है। आज जो भी पेयर बनाए और फंक्शन रिड्यूस करे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेयर बना देना है, फिर पर्टिकुलर पेयर के लिए आपको एक टर्म लिखनी है, ठीक है, वो आपकी रिड्यूस टर्म होगी। तब ये दोनों 1 को मैंने कंबाइन किया तो उसकी वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ, एक तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे 1, तो ए तो मैं लिख ही नहीं सकती क्योंकि वो चेंज हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है उसको निग्लेक्ट करना है। लेकिन दोनों 1 में कॉमन किसकी वैल्यू है बी की वैल्यू क्या है 1। सो इन दोनों पेयर का आंसर रिड्यूस एक्सप्रेशन, रिड्यूस टर्म मुझे क्या मिलेगी बी। तो इस केमैप का आंसर क्या आएगा बी। और आप यहाँ भी देख लीजिए एक बार, अगर मैं डायरेक्टली लो अप्लाई करती हूँ तो बी कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा a प्लस एड है, सो इट इज 1, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या होगा बी। सो आपको ऐसा लगेगा कि ये सिंपली सिंप्लीफाई हो रहा था, फिर हमने केमैप में क्यों रखा है इसको, ठीक है। सो एक्चुअल में ये सिंपल है, इसीलिए फंक्शन अगर नंबर्स ऑफ ज़्यादा है ना आपके पास, टर्म ज़्यादा है, तो केमैप आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। जैसे आपको ए अब 3 का दिया है तो कितने स्क्वायर बन सकते हैं 8, मैंने ए बी यहाँ पे लिया है, सी यहाँ पे लिया है, सो इट इज 0 0 0 1 1 1 1 0। ये याद रख लेना, वही अल्टीमेट इजी ऑप्शन आपके लिए, ये कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन आपको पता ही है वैसे, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0,
ए बी दो वेरिएबल है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सी यहाँ पे लिया है तो उसकी दो ही वैल्यू हो सकती है 0 एंड 1। अगेन ए बी मैंने स्टार्टिंग में लिया है तो कॉलम वाइज जाएगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7। अब जितनी भी वैल्यूज आपको दी है यहाँ पे, जितने भी मीन टर्म्स दी है उसकी वैल्यू स्क्वायर में क्या रखनी है 1। तो फर्स्ट इट इज ए 0 0 1, तो 0 0 1 मतलब ये। फिर क्या दिया है 0 1 1, तो ये। फिर क्या दिया है 1 0 1, सो 1 0 एंड 1 मतलब ये टर्म आई। एंड लास्ट है इट इज ए बी सी, तीनों की वैल्यू 1 1 1, ए बी की वैल्यू भी 1 है, यहाँ पे 1 की वैल्यू भी 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। तो अब देखो मैं दो की भी बना सकती हूँ ना, इस दो को कंबाइन किया, इस दो को कंबाइन किया, या फिर आप कॉर्नर के भी कंबाइन कर सकते हो। ओके, जैसे आप इसको एक पेज कंसीडर कर लो, मैं पेज को फोल्ड कर रही हूँ तो जो कॉर्नर के 1 है ना दोनों वो पास पास में आ जाएंगे। ओके, यू टू जस्ट कंसीडर एज ए पेज, वो आगे तो करना ही पड़ेगा जब नंबर्स ऑफ 1 ज्यादा हो जाएंगे। तो ये एक पेज है, उसको मैंने बीच में से फोल्ड किया है तो ये दोनों कॉर्नर है ना वो मैच हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो मैं कॉर्नर के दो को कंबाइन करके भी कर सकती हूँ, बट ये 4 का ग्रुप बन रहा है तो मुझे 2 का नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? देखो जैसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे था, एक पर्टिकुलर टर्म थी तो उसमें दो वेरिएबल प्रेजेंट थे, मैंने 2 का ग्रुप बनाया, सो ओनली मुझे एक की लिटरल मिला क्या बी। तो जितने आप ग्रुप है ना वो हायर नंबर में बनाते जाएंगे, लाइक 2 4 8, जितने ग्रुप की साइज इंक्रीज होगी ना आपके नंबर्स ऑफ लिटरल कम हो जाएंगे। दैट्स वाई आपको फर्स्ट हायर नंबर के लिए ट्राई करनी है, उसके बाद 2 या 1 के लिए ट्राई करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 का भी बन रहा है, फिर भी मुझे किसका बनाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल 4 का बनाना है। तो 4 का बनेगा तो इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? चलो आपको किस तरह से देखना है कि दिस टू दिस एंड दिस टू दिस, क्योंकि चारों में 1 है तो कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है और कौन सा स्टेबल है? जो भी स्टेबल है वो मेरा आंसर है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं चारों 1 को कंसीडर करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? सी, बिकॉज आप देखो 0 0 से मैं 0 1 जा रही हूँ तो ए तो स्टेबल है, दोनों में उसकी वैल्यू 0 है, बट बी चेंज हो रहा है 0 to 1, तो बी चेंज हो गया मतलब बी कैंसल। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को देखो क्योंकि मुझे सारी टर्म देखनी पड़ेगी ना जिसमें भी 1 प्रेजेंट है। ठीक है, तो 0 to 1 तो ए तो चेंज हुआ ही। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है 1, तो बी को मैं भूल गई थी बट यहाँ पे ए भी चेंज हो रहा है, ए की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे क्या हुई 1, तो ए भी निगलेक्ट हो गया। बी एंड ए दोनों की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही तो वो दोनों नहीं आएंगे। कॉलम में अगर रो में मैं देखूं तो सारे 1 के लिए सी की वैल्यू क्या है 1, मींस सी इट इज स्टेबल, तो यार आंसर क्या होगा सी। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो अगर आपको इतना फंक्शन दिया है तो आप उसमें लॉस अप्लाई करते, उसके बाद फाइंड करते, उसकी जगह पे जो भी मीन टर्म्स दी है उसकी जगह पे 1 लिख देना है। आपको पेयर बनानी है 1 की, बट फर्स्ट ट्राई फॉर 8 स्क्वायर दिए तो फर्स्ट 8 की पेयर बन रही है वो देखना है, उसके बाद 4 की बन रही है वो देखना है, उसके बाद 2 की बन रही है, 2 की भी नहीं बन रही तो 1 को एज इट इज करके वापस मीन टर्म लिख देनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हायर नंबर के लिए ट्राई करना है। जैसे यहाँ पे 4 का आपने किया ना तो आपको 1 की लिटरल मिला, देखो उसकी जगह पे अगर मैं 2 का करती ना तो मुझे 2 लिटरल मिलते, तो अगर 8 का लिटरल 1 लिटरल मिलेगा मीन्स हमारी सर्किट सिंप्लीफाई ज्यादा होगी कंपेयर टू 2 ग्रुपिंग। ओके ओके, आंसर सी। ओके, ये सारे एग्जाम्पल है मोरिस मेनो के, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। बट मोरिस मेनो में देखना इसमें रो वाइज दिया होगा 0 1 2 3। मैंने आपको क्यों डेसिमल करवाया? देखो आपको ये वैल्यू दे दी है डायरेक्ट मीन टर्म्स और बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करो यूजिंग केएमएल। सो 2 3 4 5 कहाँ पे आएगा? देखो रो में जाइए 0 1 2 3, तो प्लस 1 1 इंटू 3, उसके बाद 4 5, तो यहाँ पे 1 1 प्लस कर दो 6 एंड 7। अब कोई ऑप्शन नहीं है, 2 2 की पेयर बन सकती है, 2 2 की पेयर बना के उसकी मीन टर्म को यहाँ पे लिख दीजिए, इट इज योर फंक्शन। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी मेथड है केएमएल, बट अगेन मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन केएमएल। एंड आनंद कुमार में इसके नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल दिए हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके गूगल क्लासरूम में मोरिस मेनो, आनंद कुमार, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी है, एज वेल एज मोरिस मेनो का सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड किया हुआ है।
और ये जो पीपीटी है ना वो आज मैं अपलोड कर दूंगी आपके गूगल क्लासरूम में. आई थिंक वी हैव टू स्टॉप हियर. इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज let me know.